beneficent, most merciful. In today's e-lecture, you people are going to learn. You will learn about defense of poesy, or you can say that defense of poetry by Philip Sidney. Philip Sidney is known as first critic. He has given his critique related to poetry. I mean to say, somebody attacked on poetry, people attacking on poetry, just like in Aristotle time. Plato attacked poetry. Plato said that it's a mother of abuse. It's not good. It's a vile. It's leading people towards wrong directions. So same way, here we, especially in Renaissance age, especially in Elizabethan age, we see some writer, they are also criticizing poetry, like Stephen Gosson. He was a Puritan, and he has written a nasty piece. He has written School of Abuse. In School of Abuse, he has criticized poetry. He says that the poetry is not good. Poetry is just wastage of time. It's a mother of evil. It's not good. It's deviating young mind people. So young minds people, they are just being deviated by the poetry. Poetry is not good. So he has laid 4 charges, I think. So he has taken each and every charge, and he has discussed one by one. He has given his rhetoric, he has given persuasive language, and he has given befitting reply to Stephen Gosson. We'll see respectively. Then we'll discuss types of criticism. We'll discuss reader response theories and new criticism. New criticism and Russian formalism, they are almost same. They are little bit different, but they are same. I'll discuss with you what is Russian formalism, who is their founder, and to what extent they are different from each other. And then we'll also move toward reader response theory. What is reader response theory? We'll see respectively. Then we'll discuss, there is another, a Mayor of Casterbridge by Thomas Hardy. We try to just skip this today, but tomorrow I'll discuss this because it's another novel. Then Mansfield Park by George Eliot, and then Jude the Obscure by Thomas Hardy. So you can see that there are a lot of tasks. So this task I'll be missing today, this one, but I'll be discussing with you this one and this one, because if I discuss this one, it will take a lot of time. So our video will be quite longer. So we are going to discuss defense of poesy, type of criticism, reader response theory, and then Mansfield Park by George Eliot, and Jude the Obscure by Thomas Hardy. So let's start. We start from Mansfield Park. Mansfield Park, it is written, it was written 1812 and 13 in England. इसको पब्लिश किया गया था 1814 में, और लिटरेरी पीरियड जो चल रहा था वो था रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म. लिटरेरी पीरियड आपको मैंने बताया था, कुछ राइटर ऐसे हैं जो रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म दोनों में आते हैं. तो आपको मैंने बताया था कि विक्टोरियन एज जो है वो स्टार्ट होती है 1837 से और एंड होती है 1901 पे. और क्लासिकल एज जो थी उसका रिएक्शन था रोमांटिक एज. ऐसा राइटर जो दो एजेस के दरमियान आ रहा हो, मतलब दोनों एजेस को वो टच कर रहा है, तो उसको क्या कहते थे, कल मैंने बताया था, अगर वो पूछ लें तो ट्रांजिशनल राइटर क्या कहते हैं उसको. तो ये भी हमारी राइटर है जो मतलब इसका लिटरेरी पीरियड उस वक्त चल रहा था, रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म. तो अब ये ज़्यादा दिखाती है रियलिज्म. जॉर्ज एलियट को अगर देखा जाए तो जॉर्ज एलियट क्या दिखाती है, रियलिज्म. Mansfield Park.
मैन्सफील्ड पार्क के अंदर अगर देखें तो एक इसकी प्रोटैगोनिस्ट है, उसका नाम है फैनी प्राइस। फैनी प्राइस मिस्टर और मिसेस प्राइस की बेटी है और ये नेवल ऑफिसर है, मिस्टर प्राइस और मिसेस प्राइस। मिस्टर और मिसेस प्राइस की बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन ये इतने रिच नहीं हैं। क्लासेस में बटी हुई सोसाइटी आपको दिखाई जाएगी। जब भी विक्टोरियन एज होगी तो आप समझ लें कि क्लास जो है वो बटी हुई है। किसमें क्लासेस, कितनी क्लासेस हैं? अपर, मिड और लोअर, मतलब यहाँ पे भी आपको क्लासेस दिखाई जा रही। तो मिस्टर प्राइस और मिसेस प्राइस जो हैं ये इसके पेरेंट्स हैं। इनके काफ़ी बच्चे हैं, तो ये इन बच्चों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये अपनी मिसेस प्राइस क्या करती है कि अपनी जो सिस्टर है लेडी बर्टम, ये लेडी बर्टम के यहाँ अपनी बेटी को भेज देती है। फैनी प्राइस को भेज देती है लेडी बर्टम के यहाँ। लेडी बर्टम का जो हस्बैंड है उसका नाम है थॉमस और वो एक रिच मैन है, काफ़ी रिच है। तो ये अपनी मिसेस प्राइस क्या करती है, अपनी बेटी को भेज देती है, छोटी सी है, उसको भेज देती है लेडी बर्टम के पास। लेडी बर्टम जो है वो मैन्सफील्ड पार्क एक प्लेस है जहाँ वो रहती है और काफ़ी रिच है और उसके अपने 4 बच्चे हैं। यानी जो सर थॉमस है जो कि हस्बैंड है लेडी बर्टम का, इसके 4 बच्चे हैं। एक का नाम है टॉम, एक का नाम है एडमंड और एक का नाम है मारिया और एक का नाम है जूलिया। ये जो मिसेस नॉरिस है ये मतलब ये इसकी सिस्टर है, मतलब ये सिस्टर इन लॉ है इसकी, सर थॉमस की। तो इसका जो हस्बैंड है वो सर थॉमस का भाई है, मिस्टर नॉरिस। अब मिस्टर नॉरिस मिसेस नॉरिस जो है ये लाइक नहीं करते इसको फैनी प्राइस को। इस घर में सारे लोग जो हैं स्नोबिश हैं, मतलब ये सारे जो लोग हैं, चाहे वो सर थॉमस हो और टॉम हो। टॉम जो है वैसे ही शराबी है और जुआ खेलता है, गैम्बलिंग करता है और इसमें बहुत सारी बुरी आदत हैं। एडमंड जो है ये एक नेक है, ये एक नोबल है, ऑनेस्ट बंदा है। तो फैनी का किसी के साथ दिल नहीं लगता। जब ये यहाँ पे आ जाती है तो ये मिस करती है अपने भाई को, विलियम को। विलियम इसका भाई है और ये इकट्ठे मतलब घर में रहते हैं। अब वो घर में प्रॉब्लम है तो इसको इसकी मदर ने अपनी बहन के पास छोड़ दिया। अब यहाँ पे विलियम जो है, विलियम को ये मिस करती रहती है और परेशान रहती है, इसका दिल नहीं लगता। ये 4 बहन भाई हैं सर थॉमस के, यानी जो बच्चे हैं उसमें टॉम है, एडमंड है, मारिया है और जूलिया है। अब इसमें से सबकी नेचर जो है बड़ी फ्रिवलस है। टॉम जो है ये हमेशा जुआ खेलता रहता है और इस पर बहुत ज़्यादा कर्जा है। दूसरी साइड पे जो मारिया है ये भी एक फ्लर्टी लड़की है, फ्लर्टियस लड़की है और जूलिया जो है ये भी फ्लर्टियस है। एंड पे हम देखते हैं कि मारिया जो है वो हेनरी के साथ भाग जाती है, जूलिया जो है ये भाग जाती है एक मिस्टर यीट नामी एक बंदा होता है जो फ्रेंड होता है टॉम का, ये उसके साथ दौड़ जाती है। मतलब इनकी ये बैड करैक्टर इसकी बच्ची हैं। जबकि फैनी जो है ये एक वैसे भी पुअर गर्ल है, यहाँ पे आई है, अपने आप को एडजस्ट कर रही है और इसका दिल नहीं लग रहा, लेकिन ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट है, सिंपल है, टू द पॉइंट है और बड़ी नेचुरल और ऑनेस्ट गर्ल है। दूसरी साइड पे ये मिस करती रहती है अपने विलियम ब्रदर को और सूजन जो इसकी सिस्टर है इसको, ये दोनों को मिस करती रहती है, इसका दिल नहीं लग रहा। एडमंड बड़ी कोशिश करता है ताकि फैनी जो है एडजस्ट कर जाए और इस घर में रहे। अब होता यूँ है कि कुछ दिनों के बाद जब ये वहाँ पे स्टे करती है तो मिस्टर नॉरिस की डेथ हो जाती है। मिस्टर नॉरिस जो है वो एक पादरी है एक चर्च में उसी जगह पे। अब मिस्टर नॉरिस जो है पादरी है तो उसकी डेथ के बाद डेफिनेटली न्यू पादरी आएगा चर्च में। तो इसकी डेथ के बाद जब इसकी डेथ होती है तो एक न्यू पादरी जो है डॉक्टर ग्रांट नामी एक न्यू पादरी आता है चर्च में, जो कि जिसने अब क्या उस चर्च को संभालना है। अब ये भी उनके पास उसी स्टेट में जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे आ गया है। अब ये आया तो इसकी हाफ सिबलिंग इसके भी साथ आए हैं, मिस्टर और मिसेस ग्रांट जो है ये दोनों आए हैं, मियाँ बीवी हैं और ये चर्च में आया है। इसके साथ आते हैं हेनरी और मैरी, ये 2 करैक्टर भी आते हैं, ये इनके बच्चे हैं। अब जैसे ये वहाँ पे आते हैं तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये दोनों बड़े अट्रैक्टिव हैं, ब्यूटीफुल हैं। हेनरी जो है ये थोड़ा सा शरारती भी है और साथ साथ ये मिस्चीवियस एक बॉय है और साथ ये फ्लर्टी भी है।
अब एक ये फ्लर्टियस नेचर वाला हेनरी है और मैरी जो है वो भी ऐसी है, और ये किसके बच्चे हैं? डॉक्टर ग्रांट और मिसेस ग्रांट के। अब होता यूं है कि ये फैमिली जो है, सर थॉमस ने कहीं जाना है तो मारिया जो है अपनी फ्रेंडशिप कर लेती है एक रशवर्थ नामी एक बिजनेसमैन से। ये काफ़ी एज में बड़ा है और इतना खूबसूरत भी नहीं है, लेकिन रशवर्थ जो है रिच है, तो इसके साथ मारिया जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेती है। और मारिया क्या किस लिए अंडरस्टैंडिंग बनाती है? ये भी एक फ्लर्टियस लड़की है, तो रशवर्थ को इसलिए उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाती है कि ताकि वो क्या कर ले, पैसा उसके पास काफ़ी है। तो अब सर थॉमस जो है वो वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं बिज़नेस के सिलसिले में, तो उसने कहा मारिया से कि तुम शादी नहीं करोगे रशवर्थ और मारिया से जब तक मैं वापस ना आऊँ, क्योंकि मैं एक बिज़नेस टूर पे जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो फिर मैं आपकी शादी का मैं ऐलान करूँगा और फिर आप शादी कर सकते हो। ये दोनों की बात होती है, लेकिन ये रशवर्थ से मिलती रहती है, रशवर्थ के साथ ये अपने ताल्लुकात जो है वो बनाती है, और साथ साथ जब हेनरी आता है ये एंगेज हो जाती है रशवर्थ के साथ। ये इसके साथ तो एंगेज है। अब हेनरी जो है बड़ा अट्रैक्टिव है, इसने भी इसको प्रपोज करना शुरू कर दिया हेनरी ने। और साथ ये सिर्फ इसको प्रपोज नहीं करता, ये क्या करता है हेनरी, ये साथ इसकी जो जूलिया सिस्टर होती है इसको भी फांसने की कोशिश करता है। ये दोनों को कभी ये कहीं ले जाता है डेट पे, कभी कहीं कहीं, इन दोनों बहनों को बेवकूफ़ बना रहा है। मतलब ये इतना फ्लर्टियस है नेचर का है हेनरी कि ये एक साइड पे मारिया को तो ये कर ही रहा है प्रपोज, और उसको तो वो फ्लर्ट कर ही रहा है उसके साथ, साथ साथ हम देखते हैं कि जूलिया को भी फ्लर्ट कर रहा है। और इस दफ़ा ये अरेंज करते हैं कि ये एक ड्रामा जो है ये अरेंज करेंगे। ड्रामा ड्रामा की रिहर्सल करेंगे। ड्रामा का मतलब ये होता है कि ये इंग्लिश लोग जो होते हैं ना, जब ये ड्रामा वगैरह करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, उसमें ड्रामा की रिहर्सल करते हैं, तो ये कहते हैं हम ड्रामा की रिहर्सल करते हैं। ये सारे अब दोस्त बन गए हैं, टॉम, एडमंड, जूलिया, और उसके अलावा ये जो फैमिली आई है इसमें जो दो बच्चे हैं हेनरी और मैरी। हेनरी फ्लर्टियस है, ये दोनों को कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है। अब ये सारा मामले से फैनी प्राइस जो है इसको लाइक नहीं करती। अब ये सजेस्ट करते हैं, हेनरी सजेस्ट करता है इन सब को, हेनरी सजेस्ट करता है टॉम, हेनरी और मारिया, जूलिया और ये मैरी, ये सारे मतलब एक प्लान बनाते हैं कि हम रिहर्सल करेंगे। रिहर्सल मीन कि एक दूसरे के साथ डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे, फन